नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज। मंगलवार की आधी रात घड़ी में करीब 1:45 बज रहे थे। पुलिस की गाड़ी बारेपुर के सूर्यपुर इलाके की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठा था प्रभास मंडल, वही शख्स जिसे 12 साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। पुलिस उसे उस जगह पर ले जा रही थी जहां पर उस मासूम की जिंदगी खत्म हुई थी। मकसद था उस खौफनाक रात की पर्दे खोलना। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि घटनास्थल पर पहुंचते ही प्रभास ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक पुलिसकर्मी की सर्विस राइफल छीन ली और फिर फायरिंग शुरू कर दी। आरोप तो ये है कि प्रभास भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर जवाबी फायरिंग भी की पुलिस द्वारा। प्रभास को अस्पताल जब फायरिंग लगने के बाद ले जाया गया तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। सवाल उठने लगे, क्या पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी वाकई हथियार छीन सकता है? क्या इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वह फायरिंग कर सकता था? और अगर कर सकता था तो सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे? इन्हीं सवालों ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। किसी ने इसे फर्जी बताया तो किसी ने निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इस पूरी कार्रवाई को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए बड़ा आरोप लगा दिया। जी हाँ, उन्होंने दावा किया कि आरोपी को कुछ ऐसे राज मालूम थे जिन्हें सामने आने से रोकने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। वरिष्ठ नेता सौगत राय ने भी सवाल उठाए हैं एनकाउंटर को लेकर कि आखिर पुलिस हिरासत की मौजूदगी में आरोपी हथियार कैसे छीन सकता है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल को यूपी 2.0 बताते हुए पुलिस कार्रवाई की आलोचना कर दी। Today is a bloodthirsty day in Bengal. For the first time in the history of Bengal, we have seen an encounter killing. This is UP 2.0. There are very strict rules on encounter shootouts, and the police is supposed to shoot at the accused's legs, that is below the knees. This is the rule. You are not supposed to shoot in the chest, you are not supposed to shoot in the back, you are not supposed to shoot in the head. Why did the Bengal police shoot this man in a manner that he is dead? Because they are acting on behalf of the BJP and they want to shut Prabhash Mondal's mouth up. Initially, we saw when it happened, 3 accused were released by Shantanu Mondal, the BJP leader. On public outrage, Ananta Sardar was re-arrested. We saw Prabhash Mondal in police custody yesterday, sitting and talking about an accused named Raja. Who is Raja? Is BJP going to tell us who is Raja? And the Mukhyamantri, the chief minister, says, Subeh Jama, Sham ko Kharach. That means, Subeh, Prabhash Mondal's life was Jama Karod, was deposited in the safekeeping of the government, and by evening the life had been Kharch Karod, had been spent, had been wiped out. And the BJP have the gall to stand on the soil of Bengal and say this is Doibo Bichar, this is divine justice. We are still living in a land which is governed by the rule of law. Bengal is not outside India. India still lives by its constitution and by the rule of law. We don't believe in divine justice. We believe in the rule of law and in justice that can be given only by the courts of law. Is the BJP trying to tell us that from today the holy books will be the scriptures, will be the rule of law, that the constitution has ceased to exist, that the rule of law has ceased to exist? Any person, whether he is accused of rape, of murder, of any heinous crime, has the right to a fair trial, a speedy fair trial, and any punishment that must be meted out in accordance with the law. That is the difference between rule of law and rule of jungle. But today Bengal is living by the rule of the jungle, and the rule of law has disappeared, where the police have turned into UP 2.0 and are doing encounter killings. It is a shameful day. It is a shameful day in the history of Bengal, and we demand answers. What did Prabhash Mondal know? We will never know. तो वही बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है। महुआ मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जी हाँ, बीजेपी नेता निर्बान गांगुली ने कहा कि पहले संदेश खाली से पार्क स्ट्रीट तक कई घटनाएं हुई, मगर तब महुआ मोइत्रा ने चुप्पी साध रखी थी।
अनिर्बान ने कहा कि मानसिक रूप से अस्थिर है वो। देखा जाए तो अब यह मामला जो है सिर्फ रेप और मर्डर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो किया वो सही किया, अपराधियों की कोई माफी नहीं है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कोई भी रास्ता अपनाया है। यहाँ भी पुलिस को छूट है, अपराधियों को कोई माफी नहीं है। जो जरूरत पड़ेगा कानून व्यवस्था स्थापित करना सब किया जाएगा। जनता ने हमको वोट देके और इसलिए शांति चाहता है, विकास चाहता है जनता यहाँ के, उसके लिए सरकार सब कुछ। काउंटर बोला जा रहा है, ऐसा है जो शैतान पकड़ा गया था उसको लेके जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वो भागने का कोशिश किया और पुलिस से छीन लिया उसका बंदूक। तो अगर पुलिस को ही मार देते तो क्या होता, और इस बॉर्डर क्रिमिनल को और क्या करे पुलिस। तो ये मैसेज जाना चाहिए जो बंगाल में जो सरकार है ये जीरो टॉलरेंस है महिला के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है। ये बच्ची थी, नाबालिगा थी, उसके ऊपर जो अत्याचार हुई, जो बलात्कार हुई और मार दिया गया, इसके साथ जो भी इसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष जो क्रिमिनल लोग हैं तो वो लोग सबको ही हमारे देश का कानून मुताबिक साजा होना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सूर्यपुर के एक तालाब से 12 साल की मासूम का शव मिला था। पोस्टमार्टम और शुरुआती जो जांच हुई उसमें रेप और हत्या की आशंका सामने आई। घटना के बाद जो पूरा इलाका है वो सुलग उठा। लोग जो है वो सड़कों पर नजर आए, नारे लगे, इंसाफ की मांग हुई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी उठने लगी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन जो अब मुख्य आरोपी है प्रभास मंडल, उसकी मौत ने केस को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। एक तरफ मासूम के लिए इंसाफ की पुकार, दूसरी तरफ एनकाउंटर पर उठते सवाल। बारुईपुर का यह मामला अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि रहस्य, राजनीति और सवालों का ऐसा जाल बन चुका है जिसका जवाब अब पूरा बंगाल जानना चाहता है। आपको क्या लगता है कि बंगाल में ये जो बारुईपुर केस पे एनकाउंटर हुआ ये सही था या गलत? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।